the Remo D'Souza I'm talking about. So I love him. And उनके स्टूडियो में हम लोग गए तो वहाँ पे he was also there. Like this is normal father son thingy जो हम लोग करते ही रहते हैं मैं और न्यूटन. I can't even be compared to a bit of him. He's too good. And there's a lot to learn from him. I keep learning from him. I've told this to him also. And my boy was clicking pictures for me. तो करते करते बहुत देर के बाद वो कहता है सर ये तो पोस्ट लीजिए. एंड ये दोनों लिटरली मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं. मैं दोनों से बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ. I am not at all successful. I am still struggling and I am trying hard to be something. I am trying hard to attain love from all my people. पर क्या आपने कभी भी सोचा है कि आपके पसंदीदा सितारों की पिक्चर्स, कैप्शंस, फोटोज एंड वीडियोस के पीछे क्या है खासियत? कितने रीटेक्स और टेक्स लगे थे एक पिक्चर, या फिर कितनी बारी लिखकर और उसको री एडिट किया गया था एक कैप्शन को? वेल, आज हमारे यादों की बारात सेगमेंट में जुड़ने वाले हैं मेरे साथ पर्ल विपुरी, यानी कि द हैंडसम हंक, द चार्मर पर्ल, और वो करेंगे डिकोड अपने सोशल मीडिया की कुछ खास पोस्ट, वीडियोस, कैप्शंस के राज को. वेल, वो जिएंगे अपनी कुछ ऐसी खास यादें और करेंगे रिलीव कुछ ऐसी मेमोरीज जिनको जानकर आप लोग भी काफी एक्साइट हो जाएंगे. तो आइए चलिए बिना ज्यादा वक्त जाया करे करते हैं पर्ल का स्वागत. I have a very interesting question for you. Have you ever gone back on your Instagram account and seen the kind of posts that you have posted there, or the captions that you have kept there? Yeah, at times I just go and check. कभी-कभी मैं गलत भी कुछ लिख देता हूँ. So I just recheck at times. What is the story behind this one? This ये actually Amir is a very good friend of mine. We're very close brother like. And he was like, let's do something, let's make TikToks and everything. He's like, मैंने बोला मैं कहीं और से आ रहा हूँ, तो he got clothes also. कि नहीं, take my clothes. I have a lot of clothes, so he got clothes for me. And कहाँ जाए तो Remo, we have a common friend, Remo. Remo is the Remo D'Souza I'm talking about. So I love him. And उनके स्टूडियो में हम लोग गए तो वहाँ पे he was also there. पता नहीं हमने क्या किया और पता नहीं हमने क्यों किया और पता नहीं ये जो भी हम लोगों ने किया, बच्चन साहब वाला कुछ माँ और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे हम लोग, बट कुछ ना कुछ बन गया, कुछ ना कुछ हो गया, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी रियली फनी. The next one I would say is my personal favorite because I love dogs and you have an adorable one. What Yes. about this video? This is basically me and my son and he loves me so much. तो after a point जब मैं बहुत दिनों के बाद जब घर वापस आता हूँ तो वो the way he expresses himself, the way he loves me, the way he shows that anger where he missed me so much. So वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगी. तो ये वीडियो मैंने इंटेंशनली नहीं बनवाया था. इसकी बैक स्टोरी ये है कि जो मेरे घर के I have 4 people at my place, वो my family. अब तो मम्मी भी आ गई हैं, बट इससे पहले 4 लोग हैं जो मेरी फैमिली की तरह ही बिहेव करते हैं. वो मेरे कुक भी हैं, वो न्यूटन का भी ध्यान रखते हैं, वो मेरा उसमें से बॉय भी है, मेरा ड्राइवर भी है, सारे 24 घंटे मेरे साथ ही थे. तो उनका पता नहीं क्या दिल किया, उन्होंने वीडियो बनाने शुरू कर दिए. मैं उसको प्यार कर रहा था एंड वी वर लाइक दिस इज नॉर्मल फादर सन थिंगी जो हम लोग करते ही रहते हैं मैं और न्यूटन. The next one, it is a replica that you have created. ये बेसिकली मेरे किसी फैन क्लब ने क्रिएट किया था with me and बच्चन साहब, and I played बच्चन साहब's character in बेपनाह प्यार in one of the sequences. So वो सेम कपड़े थे डॉन वाले, उनके भी और मेरे भी, तो मैंने पहना था and I really enjoyed because I really love him. How was the feeling that after working in the industry for a good span of time, you are being compared to one of his characters? I can't even be compared to a bit of him. He's too good, and there's a lot to learn from him. I keep learning from him. I've told this to him also. Definitely, he has so much to learn from. उनके बात करने का तरीका, उनका देखना, उनका चलना, everything. He's just a package of full of talent, full of things to learn. Okay, next I think is this picture. ये तो अंगद है. So basically, this was the time when we were shooting for the promo of Brahma Rakshas 2, and
आई वाज वेयरिंग अ शेरवानी जिसके ऊपर मैंने पगड़ी पहनी हुई थी, तो मुझे लगा यार कुछ नया करना चाहिए लाइफ में, तो मैंने शेरवानी हटा दी, पगड़ी और टी-शर्ट बड़ी अच्छी लग रही थी। ओके, व्हाट अबाउट राइट अंदर, ये तो मेरे बच्चे हैं दोनों, बेसिकली ही इज माय नेफ्यू एंड नीस विद मी, तो योहान एंड टिया। माय सिस्टर इज मैरिड विद 2 kids एंड दीस आर 2 kids। आई लव देम। इनको मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं बच्चों से कितना प्यार करता हूँ। एंड योहान को सबसे पहले, इनफैक्ट जीजू और दीदी से भी पहले मैंने गोद में उठाया था। सो योहान इज वेरी क्लोज टू मी, टिया इज आल्सो वेरी क्लोज टू मी, एंड हमारे घर में यही दोनों सबसे छोटे बच्चे हैं। But you know, when I went through the comment section of this picture, I saw a handful of comments that read, I wish I was the one who gave him that. And that is this picture. अच्छा। So a lot of people had commented saying, I wish I was the one who gave him that. In short, they were talking about the kiss. इस picture के पीछे की बैक स्टोरी क्या है? इसकी बैक स्टोरी है, when we were shooting for the song तेरी आंखों में, उसमें एक सीक्वेंस था where दिव्या kisses me. So वो वाला जो किस था वो मैंने रियलाइज भी नहीं किया था कि यहाँ पे है, और मैं वापस रूम में आ गया था। एंड माय बॉय वाज क्लिकिंग पिक्चर्स फॉर मी। तो करते करते बहुत देर के बाद वो कहता सर ये तो पोस्ट लीजिए। उसके बाद मैंने हटाया, और जब बोलता तब तक तो ये आ चुकी थी, तो मुझे लगा दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, अभी मैं इसको पोस्ट कर सकता हूँ। सो मैंने इसको पोस्ट कर दिया। सो दैट वाज दिव्या। ओके, व्हाट अबाउट दिस पिक्चर? ये दोनों मेरे भाई हैं, इन दोनों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। These are 2 of my closest friends, and एक तरफ है विकास पाराशर, and एक तरफ है दर्शन रावल, he is a singer, and ये दोनों लिटरली मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैं दोनों से बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे बर्थडे पे इन दोनों ने मुझे ऐसे उठा लिया था, एंड पता नहीं किसने पिक्चर खींचा था, तो आई फील मैंने या विकास के या दर्शन के, दोनों में से किसी के बर्थडे पे पोस्ट किया था। The last picture is I think it's a video that defines your journey in the industry. What do you have to say about this one? This one basically I had been called for TED Talks as a speaker. I was very happy. मेरे को ऐसा उन लोगों ने सोचा कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ है जो मैं बता सकता हूँ। So मैंने इससे पहले TED Talks देखा था मिस्टर शाहरुख खान का, तो मुझे लगा कि नहीं यार, डेफिनेटली दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू गो। तो मैं गया वहाँ, जाके उन्होंने मेरे को एक स्क्रिप्ट दी, मुझसे बहुत सारी बातें पूछी। मैंने कहा सी दिस इज माय लाइफ स्टोरी, आई डोंट नीड अ स्क्रिप्ट, आई जस्ट हैव टू से व्हाट हैपेंड विद मी एंड हाउ आई एम हियर। तो वो मैं अपनी स्टोरी बता रहा था। उसमें बीच में एक छोटा सा चंक था जहाँ पे मैं बताता हूँ कि देयर वाज अ टाइम जब 9 दिन तक मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं थे, तो मैं गोलगप्पे खाता था 1 महीने तक। गोलगप्पे वाले से भी मेरा हिसाब ऐसा हो गया था कि नहीं अब पैसे नहीं देने के, तो फिर 9 दिन तक मैं भूखा था। तो मैं वो स्टोरी के बाद बताता हूँ कि मैं 9 दिन तक भूखा था, और 9 दिन तक भूखा रहने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ। सो एवरीथिंग नीड्स स्ट्रगल, एवरीथिंग नीड्स दैट काइंड ऑफ अ पेशेंस। यू नीड पेशेंस टू, you know, I don't say that I have become something. I am not at all successful. I am still struggling, and I'm trying hard to be something. I'm trying hard to attain love from all my people. But I am very patient that way. मैं पूरा patience के साथ मैं जो भी अब तक करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा, और बस इतना ही चाहता हूँ कि सब लोग प्यार करें, देखें, appreciate करें. That's my energy basically. परफेक्ट। पर्ल, ऐसी कोई तस्वीर है जो आपने अकाउंट में अभी तक डाली नहीं है लेकिन आप डालना चाहते हैं, और उसके पीछे कोई बहुत ही खूबसूरत याद है? बहुत सारी हैं। वो मैं जब कभी कोई ऐसा मौका पड़ता है, मुझे सडनली कुछ याद आ जाता है, तो फिर मैं डाल देता हूँ। परफेक्ट। पर्ल, प्लीज डू टेल अस हाउ डिड यू लाइक द सेगमेंट, बिकॉज़ मैंने बहुत ढूंढ के आपकी पिक्चर्स निकाली थी। Thank you so much. It was really sweet of you, and segment was also really sweet because मैं सुबह से Zoom calls कर रहा हूँ और हम लोग बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं, बट इसके थ्रू मेरे को ना बहुत सारी मेमोरीज याद आ गई, तो अभी मैं वापस से आई हैव चार्ज्ड माय सेल्फ एंड आई एम स्माइलिंग। Well, I wish you all the luck from Telechakkar and its team. आप प्रोग्रेस करते रहे, and you know we'll catch up again जब आपका ब्रह्म राक्षस ऑन एयर जाएगा, and we'll talk about the fan responses there. 100%. Thank you so much, Paul. Bye bye. Thank you so much, Vishakha. Lovely talking to you. Bye. Same here. It was a pleasure talking to you again. Likewise. Well, thank you so much, guys, and we really hope कि आपको आज का ये यादों की बारात सेगमेंट पर्ल के साथ अच्छा लगा होगा. We thoroughly enjoyed knowing about all the fun memories जो पर्ल ने हमारे साथ शेयर करी. You do stay tuned to Telechakkar for all the more updates for the Tele world, and also नीचे बने कमेंट सेक्शन में आप हमसे अपनी राय शेयर करना ना भूलिएगा कि आप इस सेगमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं. Until then, stay tuned.
Know all about the Tele world by subscribing to Telechuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.